لیکن پاکرو نے جو مجھے پیغام دیا تاکہ میں جمعرات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خداوند کے کلام نے زندگیوں پر اثر کیا، اور ایک جگہ پر میو کلونی میں ایک گروپ کھڑا ہو گیا اور اس نے مارننگ پریئر کا آغاز کر دیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے پیغام کے وسیلہ سے پاسٹر جو ہے وہ نگہبان مقرر کریں گے۔ ہاللیلویہ، میں ایمان رکھتا ہوں، سبھی کہیں کہ پاسبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگہبان مقرر کرے۔ پاسبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگہبان مقرر کرے۔ خدا جو ہے وہ چرواہا ہے، شیپرڈ ہے، اور وہ جو ہے اس کا بلاوا ہے، اور اس کا بلاوا ایک خاص بلاوا ہے، اور وہ بلاوا کیا ہے؟ وہ نگہبان مقرر کر رہا ہے۔ آمین، سبھی بولیں، وہ نگہبان مقرر کر رہا ہے۔ خدا نگہبان مقرر کر رہا ہے۔ ہم اس بات کو جانیں کہ اب بینگ اے پاسٹر، ایز اے پاسٹر ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم واچ مین مقرر کریں۔ آمین۔ میں کتاب جو ہے وہ پریئر کے تعلق سے لکھی گئی، اور یہ پریئر 24 آور پریئرز کے تعلق سے ہے۔ ہاللیلویہ، اور اس میں جو انہوں نے خاص ٹائٹل دیا ہے، اور یہ ہے ٹائٹل، اس ٹائٹل کو نام دیا گیا نگہبان، واچ مین، واچ مین کے طور پر۔ اور یہ شخص جس نے لکھی ہے یہ میرا پریئر پارٹنر رہا ہے، اور خداوند نے اسے بڑی برکت دے رکھی ہے۔ اور پاکستان میں یہ شخص مونگ پھلی لے کر آنے والا یہ شخص تھا، اور اس کے وسیلہ سے پاکستان میں مونگ پھلی پہنچی، منٹ گمری میں سنترے کی کاشت کی گئی، اور یہ اس کے باپ اور دادا جو ہے وہ لے کر آنے والے تھے۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہے، آپ بہت سارے لوگ جارج مکبین کو جانتے ہیں، خدا نے اسے پاکستان کے لیے بطور پریئر واریر کھڑا کیا، اور میں اس کے ساتھ کئی ایسے مقامات جن کا میں نام آپ کے ساتھ نہیں لینا چاہتا، وہاں پر جا کر ہم نے 7 چکر گاڑی پر لگائے، اور پھر ہم نے وہاں پر دعائیں کی تاکہ ابلیس اور اس کی قوتیں اور ان کا زور ٹوٹتا چلا جائے۔ سو یاد رکھیے، خداوند نے سورماؤں کو مقرر کیا ہے، خداوند نے شفاعت کنندہ کے طور پر جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، اور جارج مکبین صاحب کو یہ شرف حاصل ہے، اس نے پریئر پارٹ پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اس نے شہری اور ملکی دعائیہ تحریک کو بھی جو ہے گروپس بنائے تاکہ ان کو جاری رکھا جائے، لیکن ایک وقت میں ہم شہری سطح پر خاص کر کے ایک واچ مین اور پریئر واریئرز کے طور پر کھڑے ہوتے تھے، لیکن اب اس طور سے پریئر میں لوگ نہیں ہیں، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ پھر خدا لوگوں کو شہری سطح پر اور ملکی سطح پر دعا کرنے کے لیے اور واچ مین کے طور پر کھڑا کرے گا۔ آمین۔ سو ہماری ویژن جو ہے وہ اپنا علاقہ ہے اور اپنا شہر ہے، اور پھر ملک پاکستان ہے، اور پھر ملک پاکستان کے بعد ہماری نگاہیں ورلڈ پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ our God is missionary God۔ گاڈ جو ہے اس کا مشن جو ہے وہ ورڈ ہے۔ ہاللیلویہ، اور وہ اپنے ورڈ مشن کے اندر اپنے لوگوں کو واچ مین کی ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ واچ مین، میں ایک ایسے جرمنی کے دوست جو ہے وہ میرا، اور خدا نے اسے خاص برکت دی ہوئی ہے، اور وہ جنگی سورما کے طور پر خدا اسے استعمال کرتا ہے، ایک پریئر واریر کے طور پر کھڑا کرتا ہے، اور اس نے بہت سارے ٹیرورسٹ کے لیے دعائیں کی، ان علاقوں میں جا کر دعائیں کی، اور پھر خداوند کے فضل سے وہ ٹیرورسٹ مارے گئے۔
اور दुआओं के वसीला से खुदावंद एक बड़ी तब्दीली ला रहा है। मैं ईमान रखता हूँ कि अब वॉचमैन को नीड है कि पाकिस्तान के अंदर कलीसियाएं और कलीसियाएं में वॉचमैन खड़े किए जाएं ताकि वॉचमैन के तौर पर लोग जो हैं वो देखें। आज जो कलाम का पैसेज हम लेंगे वो यशाया का सहीफा और उसका 62वां बाब है और 62वें बाब में और उसकी आयत नंबर 6 हमारी आज मरकजी आयत होगी और फिर आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर जो कलाम का हिस्सा है, आज जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर क्या मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं? खुदा मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िए। और जितने मुझे वॉच कर रहे हैं मैं उनसे भी कहता हूं कि मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज के साथ इस वर्ष को पढ़िए। और इस वर्ष के अंदर एक बहुत बड़ा भेद है, एक बहुत बड़ा मुकाशफा है। अगर आज आपके कान खुले हैं और आपका दिल खुला है तो इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें और इसको अपनी कलीसिया और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं। याद रखिए, खुदा रिवाइवल लेकर आएगा, खुदा बेदारी लेकर आएगा। और मैं ईमान रखता हूं कि ना सिर्फ आप बेदार होंगे, आपके घराने बेदार होंगे, आपकी कलीसिया बेदार होगी, आपके इलाके में बेदारी आएगी और उसके साथ साथ खुदा शहर को बेदारी की लपेट में और मुल्क को बेदारी की लपेट में लेगा। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने WMTS में जिस लीडर को खड़ा किया, उस लीडर के मुंह से रिवाइवल जहां पर जाता था, रिवाइवल डायरेक्टर जॉन केम को खुदा ने पाकिस्तान में बेदारी का टूल और बेदारी का चैनल बनाकर खड़ा किया। वो जहां पर भी मीटिंग के लिए जाता है, जिस चर्च में मीटिंग के लिए जाता है, उसके मुंह से हम ये लफ्ज सुनते हैं कि खुदा पाकिस्तानी कलीसिया को रिवाइवल के तौर पर इस्तेमाल करे और रिवाइवल कलीसिया में आए। याद रखिए, जब लीडर रिवाइव हो जाएंगे, कलीसिया रिवाइव हो जाएगी। जब लीडर बेदार हो जाएंगे, कलीसिया बेदार हो जाएगी। जब हेड बेदार हो जाएंगे, मुआवन लीडर बेदार हो जाएंगे। मुआवन लीडर बेदार हो जाएंगे, वो जहां जहां पर जाएंगे बेदारी आ जाएगी। आमीन। सो खुदा हमें देख रहा है कि हम बेदारी के तौर पर इस्तेमाल किए जाएं। सो पिछले दिनों में हम सीख रहे थे मसनूई बेदारी नहीं, मसनूई बेदारी हमें नहीं चाहिए। मसनूई बेदारी कैसे आती है? बसों के जरिया से बसें इकट्ठी कर लें, ठीक है। ये 20,000 का क्रूसेड है, ये 10,000 का कैंपेन है, ठीक है। याद रखिए, हम इस बात को जाने कि घुटनों पे बैठकर दुआएं करने के वसीला से, हाथ उठाने के वसीला से बेदारी आएगी। आमीन। यहाँ पर देखिए, निगहबान क्या उससे खुदा तवक्को कर रहा है और क्या वो ये कह रहा है। आयत नंबर 6 में देखेंगे, आयत नंबर 6 में लिखा है, आइए मिलकर पढ़ें। ए यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश ना रहेंगे। ए खुदावंद का जिक्र करने वालों, खामोश ना रहो। आमीन। क्या ना रहो? Keep not silent, keep not silent, keep not silent. खामोश ना रहो, खामोश ना रहो, खामोश ना रहो। आमीन। खुदा जी के बानों को क्या कह रहा है? खामोश ना रहो, खामोश ना रहो, खामोश ना रहो। सो याद रखिए, एक निगहबान जो है वो खामोश बैठने वाला नहीं है। निगहबान जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। और कहां पर मुकर्रर किए हैं जी? यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर। सो आज अगर हम देखें तो आप जिस इलाका के अंदर हैं वो आपका यरूशलेम है और उस यरूशलेम की बाउंड्रीज, आपके इलाके की बाउंड्रीज
जो है वो दीवारें हैं, याद रखिए उन पर खुदावंद ने मुझको और आपको मुकर्रर किया है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद ने हमें क्या किया है? मुकर्रर किया है। उसने हमारे इलाके में हमें मुकर्रर किया है। याद रखो, उसने आपको किसी और इलाके में मुकर्रर नहीं किया, उसने आपको अपने यरूशलेम में मुकर्रर किया है, उसने आपको अपने इलाका में मुकर्रर किया है। और आप अपने इलाका के अंदर क्या करें? एक निगाहबानी जो है खिदमत के तौर पर काम करें, निगाहबानी की खिदमत। और खुदा जो है आदम को भी वॉचमैन के तौर पर रखे हुए था, उसको भी यरूशलेम में नहीं बल्कि उसको अपने यरूशलेम अदन के अंदर उसने क्या रखा था? बतौर निगाहबान और निगाहबानी उसे मुकर्रर की थी। लेकिन याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सक्सेसफुल निगाहबान नहीं था। उसने अपने दुश्मन को आने दिया। क्यों दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए गए हैं? क्योंकि निगहबान जो है वो कहां पर बैठते हैं? निगहबान दीवारों के ऊपर बुर्ज पर बैठते हैं। कहां पर बैठते हैं? बुर्ज पर बैठते हैं। और बुर्ज जो है ये सतून नमा होते हैं। और मैंने कई मर्तबा, और आपने हमारे दरमियान आर्मी के खादिम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और परवेश गनी साहब वो जानते हैं कि जब आर्मी की यूनिट्स होती हैं और उनकी दीवारें होती हैं और दीवारों के ऊपर बुर्ज बनाए जाते हैं, और जहाँ पर वॉचमैन होते हैं, और वॉचमैन क्या कर रहे होते हैं? वॉचमैन ये देख रहे होते हैं। वो इमारत खास पर्पस के लिए बनाई जाती है, और पहला पर्पस क्या है? कोई जो यूनिट है उस पर हमला ना कर दे, इसलिए वॉचमैन मुकर्रर किए गए। दूसरी बात, उनकी हिफाजत के लिए ये दीवारें बनाई गई हैं ताकि वो वहां पर ठहर कर, बुर्ज में ठहर कर अपने लोगों की हिफाजत करें। सो इस वक्त बतौर पासबान होते हुए, पासबानों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मानद, वो पहले खुद पासबान एक निगाहबान हो और फिर अपनी मानद निगाहबान मुकर्रर करें, अपनी मानद लोग मुकर्रर करें, और वो फिर आगे ग्रुप्स बनाएं। जब ग्रुप्स बनेंगे और वो वॉचमैन ग्रुप्स होंगे, और वो क्या करेंगे? वो अपनी कलीसिया की, सबसे पहले अपने खानदान की और अपने कलीसिया और अपने इलाका के लिए वॉचमैनी खिदमत सर अंजाम देंगे। आमीन। एक खादिम है, उसने अपना नाम ही वॉचमैनी रख लिया। अगर आप रोमियो की तफसीर उसकी पढ़ें तो वॉचमैनी की तफसीर है, ये उसका तखल्लुस है, ये उसका अपना नाम नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को एक निगाहबान के तौर पर पेश किया है। मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं कि ये बुर्ज जहां पर हम खड़े होंगे, हम लोगों को खड़ा करेंगे। हम हर जगह पर खड़ा नहीं हो सकते। और मैं ये देखता हूं कि जिस गली के अंदर, जिस स्ट्रीट के अंदर मैं रहता हूं, इसे शबीर पार्क कहा जाता है, और शबीर पार्क में सिर्फ एक ही वॉचमैन है, और सारी रात वो पूरी पार्क के अंदर तकरीबन यहाँ पर कोई 1000 से भी ज्यादा घर है, वो उनकी देखभाल करता रहता है, निगाहबानी करता रहता है। तो क्या ये एक वॉचमैन काफी है? नो, एक वॉचमैन काफी नहीं है। इतने घरानों को, इतने लोगों को, इतनी गलियों के लिए एक वॉचमैन काफी नहीं है। सो यहाँ पर ज्यादा वॉचमैन की जरूरत है। इसी तरह कलीसिया के अंदर बहुत सारे वॉचमैन्स की जरूरत है। आमीन। सो आज मैं रूहुल कुद्स के वसीला से तमाम पासबानों को और स्टूडेंट्स को ये टास्क देता हूं कि अपनी कलीसियाओं के अंदर वॉचमैन मुकर्रर करें, वॉचमैन मुकर्रर करें। और वॉचमैन जो है वो आप उसको एक एक घंटा उसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं। और जब हम निगाह करें तो जो हमारी पाक आर्मी है या हमारे हसास अदारे हैं, उन हसास अदारों के ऊपर जो वॉचमैन है
ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، اور یہ ایک خاص بلاوا بھی ہے، ایک خاص بلاوا ہے، ہر ایک کا بلاوا پاسبانی بلاوا نہیں ہے، اور خداوند جو ہے وہ نگہبانی طور پر بھی، نگہبانی کرنے کے طور پر بھی ایک بلاوا رکھے ہوئے ہے، جس میں وہ لوگوں کا، ان کا آفس پاسٹر کی آفس کی طرح بڑا آفس ہے۔ کلام کے اندر ہم دیکھیں آفس سے مراد جو ہے اس کا دائرہ کار کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا دائرہ کار بہت بڑا ہے۔ اگر آپ اپنی کلیسیاؤں کے اندر اس بات کو رائج کریں کہ ہم واچ مین کھڑے کریں، تو یاد رکھیے پاسٹر ان کو سکھاتے 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 جو ہے اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن واچ مین جو ہے اس کو پھر بھی وہ اس طور سے بریف نہیں کر پائے گا۔ یہاں پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک وسیع دائرہ ہے، اور اس میں رہ کر بھی خدمت کریں، اور یہ خاص بلاوا ہے۔ ہر کوئی کیا بننا چاہتا ہے؟ میں پاسٹر بن جاؤں، بہت اچھا ہے پاسٹرز بننا ہے، پاسٹرز کی نیڈ ہے، لیکن پاسٹر کے ساتھ ساتھ ہمیں واچ مین کی بھی ضرورت ہے، جو کیا کریں، جو شیطان کے حملے سے کلیسیا کو محفوظ رکھیں، جو کلیسیا کی حفاظت کے لیے نگہبان مقرر کیے جائیں، اور جو علاقے کے پھاٹکوں اور فصیل کی حفاظت کے لیے مقرر کیے جائیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ شہر پر حملہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ بنائے جاتے تھے، تاکہ جو شہر پر حملہ کریں گے ان سے بھی جو ہے جلد ہائی الرٹ کر دیا جائے۔ اور ایک نگہبان جو ہے وہ ایکٹیو نگہبان ہوتا ہے، ہوشیار نگہبان ہوتا ہے، جینیس نگہبان ہوتا ہے، اور اس کی بڑی خوبیاں یہ ہیں، نمبر 1 اس کی آئی سائڈ پراپر ہو۔ کیا ہو؟ اس کی آئی سائٹ پراپر ہو۔ آئی سائٹ پراپر کا مطلب ہے دیکھنے والا ہو۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں واچ مین کیا ہے؟ وہ پریئر وارئرز بھی ہے، اور کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے، سبھی بولیں، اس کی اسپرچل آئیز، اس کی اسپرچل ویژن رائٹ ہو۔ کیا ہے؟ اس کی اسپرچل ویژن کیا ہو؟ رائٹ ہو۔ اور اگر اس کی اسپرچل ویژن رائٹ نہیں ہے تو وہ پھر اچھا نگہبان نہیں ہے۔ اس کا دوسری مطلب میں سمپل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے دیکھنا آنا چاہیے۔ ہاللیلویا! کیا آنا چاہیے؟ اسے دیکھنا آنا چاہیے، وہ دیکھنے والا ہو، اور اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوں، جسمانی آنکھوں کے ساتھ ساتھ کیا کھلی ہوں؟ روحانی آنکھیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا بھید ہے، روحانی آنکھوں کا کھلنا۔ الیشا جو ہے وہ ایک ایسا واچ مین ہے جو اپنے دشمن کو دیکھ رہا ہے، جس کی آنکھیں کیا ہیں؟ کھلی ہیں، اور وہ اپنے ساتھ کس کو دیکھ رہا ہے؟ وہ خدا کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اچھی رتھوں کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو جہازی ہے وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ وہ دنیا کی آنکھیں ابھی تک اس کی ہیں، اور وہ دنیا کی فوجوں کو دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے ایک واچ مین کی بصیرت اور سائٹ اور نظر بہت اچھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اسپرچول آئیز کے ساتھ بھی دیکھے، اور اس کے بعد وہ فزیکلی آئیز کے ساتھ بھی دیکھے۔ سو ایک نگہبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرنے والا ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ سننے والا ہو۔ کیا کرنے والا ہو؟ سننے والا ہو، سننے والا ہو، تاکہ وہ ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ محفوظ جو ہے یہ ہونا ہماری نجات کو پیش کرتا ہے۔ کس کو پیش کرتا ہے؟ ہمارے بچانے کو پیش کرتا ہے، ہماری نجات کو پیش کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھیں کہ یسایہ کی کتاب اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یہوہ نجات ہے۔ آمین۔ یسایہ کا نام کیا ہے؟ یہوہ نجات ہے، اور یہوہ نجات دیتا ہے، اور خدا نجات دیتا ہے، یہوشوا نجات دیتا ہے۔ ہم اس بات کو جانیں کہ یہ پرانے عہد نامہ کی انجیل بھی ہے، اور یسایہ کی کتاب کے اندر یسوع مسیح کے لیے پیشین گوئیاں ہیں، یسوع مسیح کے لیے پیدا ہونے کی
प्रोफेसी की गई हैं, और फिर उसकी खिदमत के ताल्लुक से प्रोफेसी की गई हैं, और फिर उसकी मरने के ताल्लुक से, उसकी परसिक्यूशन के ताल्लुक से, और फिर जो है उसके जिंदा होने के ताल्लुक से, सारी की सारी प्रोफेसी इसमें की गई है। इसलिए इसे पुराने अहद नामा के अंदर इंजील का दर्जा दिया गया है। इसमें इसे इंजील भी कहा गया है कि ये ओल्ड टेस्टामेंट की इंजील है। और हम यहाँ पर इस बात को जानते हैं कि निगहबान होना एक बहुत बड़ा फर्ज है। सो खुदा यहाँ पर एक मौजू है, खुदा कमांड करता है। क्या करता है? खुदा कमांड करता है। और यहां पर हम इस बात को देखें, कमांड्स टू गॉड्स वॉचमैन। खुदा निगहबानों को हुक्म देता है। क्या देता है जी? हुक्म देता है। और हम उस हुक्म के अंदर आज यहां पर 10 कमांडमेंट्स हैं। किन के लिए हुक्म है? किन के लिए? एक निगहबान के लिए। आइए देखिए, पहली बात है वर्स नंबर 6 में कही गई है, वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे। उनको पहला हुक्म क्या दिया गया है? वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे। फिर क्या करना है? उन्हें अपनी आवाजें बुलंद करनी है। हालेलुया! उन्हें अपनी आवाजें बुलंद करनी है। किस बात के लिए आवाजें बुलंद करनी है? याद रखिए, एक वॉचमैन की जिम्मेदारी है कि वॉचमैन को पैदा करे। हालेलुया! वॉचमैन को खड़ा करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। पास्टर को खड़ा करेगा, वॉचमैन को खड़ा करेगा। यहां पर अगले हिस्से में क्या कहा गया है? अगले हिस्से में कहा गया है, ए खुदावंद का जिक्र करने वालों खामोश। पहली बात है, वो दिन रात खामोश ना रहे, ये उनको हुक्म दिया गया है। फिर खुदावंद का जिक्र करना है। उन्होंने क्या करना है? खुदावंद का जिक्र करना है। फिर खुदावंद का जिक्र करते हुए हमें खामोश नहीं होना। सो इसका काम क्या है? इसका काम है सिर्फ शफाअत के लिए इसके हाथ उठे रहे। आमीन। और दुनिया भर में बहुत सारे प्रेयर्स मूवमेंट हैं, और ये 24 घंटों के लिए जमा होते हैं। और मैं वॉचमैन की किताब पढ़ रहा था, और उस किताब के अंदर लिखा कि रेगिस्तानों में जाकर उन्होंने क्या किया, और नखलस्तानों के अंदर उन्होंने अलग टाइम गुजारे और 24 घंटे खुदा के लिए मुकर्रर किए। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा इसी साल के अंदर 24 घंटे की प्रेयर जो है वो WMTS के और मुल्क भर में खुदा शुरू कर देगा। हालेलुया! सिर्फ यही नहीं कि प्रेयर मूवमेंट की बात हो, और ये बहुत अच्छी बात है प्रेयर मूवमेंट की बात होना, लेकिन लोगों को साथ लेकर ये तहरीक देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ हमने क्या करना है? पहले हमें खुद नमूना बनना है। पहले पासवान खुद 24 घंटे के लिए खड़े हों, और उनके चर्चिस खड़े हों 24 घंटे के लिए। और जब 24 घंटे के लिए खड़े होंगे, खुदा नए जिक्र करने वालों को खड़ा कर देगा। आमीन। सो अपने चर्चिस में वॉचमैन खड़े करें, अपनी कलीसिया में वॉचमैन खड़े करें। 24 घंटे की दुआ में हम कैसे बढ़ सकते हैं? एक घंटा एक फैमिली को दे सकते हैं, एक घंटा एक लीडर को दे सकते हैं, एक घंटा एक स्टूडेंट बाइबल स्टूडेंट को दे सकते हैं। याद रखिए 24 घंटे आपकी कलीसिया में शफाअत और दुआ होती रहे। खुदा कर सकता है, इसीलिए तो खुदा ने यहां पर कलाम किया है। खुदा ये कलाम कर रहा है कि वॉचमैन मुकर्रर करो, निगहबान मुकर्रर करो, स्पिरिचुअल। और उनकी खूबी क्या हो? पहली खूबी क्या? पहला हुक्म क्या है? वो कभी खामोश ना हो। क्या? डे एंड नाइट। खुदा डे एंड नाइट के लिए रिवाइवल ऐसे नहीं आए। एक शख्स है जिसको कैमल नी कहा गया, और उसे क्यों कैमल नी कहा गया? इसलिए
کہ اسے اونٹ کے گھٹنوں والا کہا گیا کیونکہ وہ بیٹھ کر شفاعت کر کے جو ہے اور واچ مین کے طور پر کھڑا ہوتا، نگہبان کے طور پر کھڑا ہوتا، اور اس کے گھٹنے اونٹ کے گھٹنوں کی مانند بن گئے۔ اس لفظوں میں کہیں گے کہ وہ بلیک ہو گئے۔ اس طور سے اس کے گھٹنوں کی جگہ وہ بھی پھول گئی۔ سو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا ایک بڑا کام کرنے کو ہے۔ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا فصیل بنانے والوں کی تلاش کر رہا ہے۔ حزقیل میں کیا کہا ہے؟ وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ تلاش کر رہا ہے ان لوگوں کی جو اس کے لیے فصیل بنائیں، جو اس کے لیے رکھنے میں کھڑے ہوں۔ خداوند آج کلیسیوں میں سے تلاش کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کلیسیا میں بہت پاورفل خزانہ ہے۔ خادم اپنی نگاہیں کلیسیا پر لگائیں، لوگوں پر لگائیں، ایک وقت میں لوگوں کو ٹرینڈ کریں، پھر ان کو ذمہ داریاں دیں۔ میں اور آپ سارا کام نہیں کر سکتے، خدمت کا کام بڑا وسیع ہے۔ جو مجھے اور آپ کو خدمت ملی ہے، میں اور آپ مؤثر وہی خدمت کر سکیں گے، لیکن خدا ایک اور کام کے لیے بلا رہا ہے۔ ایک خادم سے پوچھا گیا کہ آپ بہت استعمال ہوتے ہیں اور آپ کے پاس وسائل بھی بہت ہیں اور آپ کا چرچ بڑا چھوٹا ہے، یہ کیسے ایک کرشمہ ہے؟ اس نے کہا میرا تعلق خدا کے ساتھ بڑا گہرا ہے، لیکن پھر بھی میں کمزور ہوں، لیکن جو میرے چرچ میں، چھوٹے سے چرچ میں شفاعت کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں۔ وہ میرے لیے شفاعت کرتے ہیں، وہ میرے لیے پاور ہاؤس کا کام کرتے ہیں، وہ میرے لیے جنریٹر کا کام کرتے ہیں، وہ میرے لیے یو پی ایس اور بیٹری کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند مجھے استعمال کرتا ہی جا رہا ہے۔ آمین۔ سو لازم ہے کہ ہم بھی شفاعت کرنے والے ہوں، ہم بھی پریئر کرنے والے ہوں، لیکن ہمارے لیے پالوس کی طرح ہمیں یہ کہنا ہے میرے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ ہمیں دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک پاسبان اور اس کے خاندان کو بھی دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے، اور کیونکہ شیطان ان پر حملے کر رہا ہے، لیکن اگر پریئر واریر اور واچ مین ہوں گے تو پاسبان اور اس کے گھرانے بھی جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، کلیسیا محفوظ رہے گی، لوگ محفوظ رہیں گے۔ آمین۔ سو پہلی بات کیا ہے؟ ہم نے خاموش، ایک دوسرے کو کہیں خاموش نہ ہو۔ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو ہلا کر کہیں اور اس کو کہنا ہے خاموش نہیں ہونا۔ اگر آپ خاموش ہو جائے تو دوسروں کو موقع مل جائے گا۔ سو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں خاموش نہیں ہونا۔ دوسری بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے، ورس نمبر 7 میں دوسری بات کی گئی ہے۔ ورس نمبر 7 میں جو دوسرا حکم ایک واچ مین کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر معبود نہ بنائے اسے آرام نہ لینے دو۔ ہاللیلویہ، آمین۔ کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ ذرا سوچیے، اپنی بائبل پر غور کیجئے۔ ایک مرتبہ پھر میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 2 بڑا اہم ہے۔ اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر معبود نہ بنائے اسے آرام نہ کرنے دو۔ ہاللیلویہ۔ میں اس کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح لیتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ آپ کو اپنی کلیسیا کو قائم کرنا ہے، آپ کو اپنا خاندان قائم کرنا ہے، اور پھر بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں تک آپ بطور انٹرسیسر کھڑے ہوں، بطور شفاعت کنندہ کے طور پر کھڑے ہوں، اور خدا آپ کو ورلڈ وائڈ ویژن دے رہا ہے، ملکوں کی رویا دے رہا ہے، روئے زمین پر معبود نہ بنائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روئے زمین پر میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو معبود کا مطلب ہے عبادت کرنے والے۔ ہاللیلویہ۔ معبود کا مطلب ہے پریز اینڈ ورشپ کرنے والے۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے give to the Lord no rest
सभी बोले नो रेस्ट, नो रेस्ट, नो रेस्ट। किसको रेस्ट नहीं देनी? खुदा को रेस्ट नहीं देनी। आमीन। किसको रेस्ट नहीं देनी? किसको रेस्ट नहीं देनी? यहाँ पर कहते हैं खुदा मैंने रेस्ट करनी। आज के निगहबान, मेरी तरह के निगहबान क्या कहते हैं? मैंने रेस्ट करनी है? लेकिन पैशन क्या है? खुदा कमांड कर रहा है। दूसरी बात ये हुक्म दे रहा है। और हुक्म क्या दे रहा है? खुदा ये हुक्म दे रहा है कि रूए जमीन पर वर्शिपर खड़े करे, तारीफ करने वाले खड़े करे। गॉड वर्ल्ड वाइड विजन निगहबानों को दे रहा है। क्या निगहबान की खिदमत छोटी है? निगहबान की बहुत बड़ी खिदमत है। मैं अपने चर्च के लोगों से और आपके चर्चिस के लोगों से ये बात कहना, ये चर्च मेरा नहीं है, ये चर्च यीशु मसीह का है, लेकिन उसने हमें मुआमन खड़े किया है, इसलिए हम उसके बिहाफ पर कहते हैं मेरा चर्च। मैं अपने चर्च से ये कहता हूं कि आप निगहबानी खिदमत में आगे बढ़िए। आपकी कलीसियाओं से कहता हूं निगहबानी खिदमत वर्ल्ड वाइड विजन है। आमीन। हमारे एक दोस्त थे इमैनुअल, और उनका भी बड़ा पैशन था, और वो इस्लामाबाद में रहते। इमैनुअल और शीबा खुदावंद ने इसने बहुत इस्तेमाल किया है। इन दिनों के अंदर ये मंजरे हम पर नहीं है, और हिडन में भी वो काम कर रहे होंगे किसी खास वर्क पर। और मैं ये ईमान रखता हूँ कि खुदावंद ने इन्हें कोई कलीसिया बनाने के लिए नहीं कहा। खुदावंद ने निगहबान और शफाअत करने के लिए बुलाया। ये मुल्क भर के अंदर ट्रैवल करते हैं, और फिर ट्रैवल करके खुदावंद ने शैमुएल पॉल को भी हमारे मुझे इनके साथ कई रातें जागने का इत्तेफाक हुआ। 24 घंटे की कई प्रेयर्स करने का इत्तेफाक मुझे और पास्टर शॉन को हुआ, और ये इंटरसेसर के तौर पर खड़ा किया गया। और हम काम के लिए इंटीरियर सिंध के अंदर एक बॉर्डर पर थे, छाछरों का इलाका है, वहाँ पर रात के वक्त बड़ी तारीकी उस इलाका में थी, और हम पर हमला हुआ। थोड़ी देर के बाद खुदा के खादिम ने कॉल की और उसने कहा कि मैं रात को आपके लिए दुआ कर रहा हूँ ताकि आप इस इलाके के अंदर हमला से बचाए जाएं। सो याद रखिए, खुदा इस तौर से खड़ा कर रहा है, लोगों को इस तौर से खड़ा कर रहा है। सो खुदावंद ये चाह रहा है कि पासबान निगहबान के तौर पर खुद भी खड़े हों, और फिर ये जिम्मेदारियां कलीसिया को दें ताकि वो निगहबानी तौर पर। और फिर एक और हमारा दोस्त है पतरस जॉन, खुदावंद उसे वर्शिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और खुदावंद ने उसके दिल पर भी ये बात रखी। पिछले दिनों के अंदर लियाकत कैसर साहब एक प्रेयर टावर का इफ्तिताह करके आए। प्रेयर टावर हैं, लेकिन याद रखिए 1 घंटा खुलने के लिए नहीं है। प्रेयर टावर 24 आवर खुले रहे। दुआया कोठड़ियाँ और वार्म रूम आपके खुले रहें, जहाँ पर क्या हो कि खुदावंद शफाअत के लिए लोगों को खड़ा करे। क्योंकि आपका जो गर्म रूम है ना, वो जगह है जहाँ पर आपका मसबा है। उसे बॉयलर रूम भी कहा जाता है, उसे आल्टर रूम भी कहा जाता है। आपके दुआया मसबे अगर ठंडे पड़ गए हैं तो उनकी मरम्मत कीजिए, अगर टूट गए हैं, बिखर गए हैं, तो फिर से उन्हें साफ करके वहाँ उन्हें मखसूस कीजिए ताकि खुदा फिर वहाँ पर मुलाकात करे। खुदा एक बड़ी जिम्मेदारी वॉचमैन को दे रहा है, और बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हमारे वसीला से दुआ करने वाले लोग खड़े हों। कहें मेरे वसीला से दुआ और तारीफ करने वाले लोग खड़े हों। मेरे वसीला से दुआ और तारीफ करने वाले लोग खड़े हों। यहाँ पर है मामूद ना बनाए, उसे आराम ना लेने दो, खुदा को आराम ना करने दो। पहली बात है अपने घर के लिए, खुदावंद मेरी बेटी को, खुदावंद मेरे बेटे को, खुदावंद मेरी बीवी को शफाअत करने वाले के तौर पर खड़ा कर दे, दुआ करने वाले के तौर पर खड़ा कर दे। खुदावंद मेरी कलीसिया की बेटियों को, बेटों को, लीडर्स को दुआ करने
बुलाने वालों के तौर पर खड़ा कर, वॉचमैन के तौर पर खड़ा कर, ये हमारा पैशन बन जाए। हम कहते रहे हालेलुया। खुदावंद, कई मरतबा मैंने लीडर्स को देखा है, पादरी हिजकिय्याह के साथ कई मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ, वो भी इसी तरह ही करते थे। डायरेक्टर साहब के साथ हमने बहुत वक्त गुजारा है और उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। जब उनकी आंख लग जाती है थोड़ी देर के बाद, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो इस हालत तक हमने जाना है। आमीन। मैं और आप करवट बदले रात को सोते हुए, उस वक्त भी हम क्या कहें? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। इस तरह हम उसकी तारीफ में आगे बढ़ें। और मुझे गज़लुल गज़लात में वो वर्स पाकरू मुझे दे रहा है जिसमें रूहुल कुद्स के ताल्लुक से है कि रूहुल कुद्स आहें, रोमियो में लिखा है, आहें भरता है, शफाअत करता है। मेरा और आपका खुदा सोता नहीं है। और किबरिया की दानी तरफ बैठकर यीशु भी सोता नहीं है, यीशु भी शफाअत कर रहा है। और शफाअत कैसे कर रहा है? वो आंसू बहाकर शफाअत कर रहा है। कहें कि वो कैसे आंसू बहा सकता है? हाँ, रूहुल कुद्स आहें भर सकता है तो वो मसीह का रूह है। हालेलुया, मसीह का रूह है, वो शफाअत करता है। याद रखिए, लिखा है गज़लुल गज़लात में, मैं सोता हूँ और दिल मेरा जागता है। इसलिए जागता है क्योंकि वो रूहुल कुद्स का मक़दिस है। हमारी सेंसेस तमाम की तमाम रेस्ट कर रही होती हैं, हमारी बॉडी कंप्लीटली रेस्ट कर रही होती है, लेकिन दिल हमारा क्या करता है? जागता है। इसलिए कि शफाअत कुनिंदा उसके अंदर है। वो बिग इंटरसेसर, वो मास्टर इंटरसेसर हमारे अंदर है। इसलिए वो हमें ये कहता है कि हम ना उसे आराम ना करने दें, हमें उस आराम। जब ये बदन जागे, ये प्रेज द लॉर्ड कहे, ये जागे, प्रेज द लॉर्ड। और एक और मेरा दोस्त है, उसके साथ भी ऐसे मुझे इत्तेफाक हुआ। एक रात नहीं बल्कि हम थोड़ी देर जो है, एक रात ही तकरीबन ये कह सकते हैं गुजारी। और फिर उसके बाद हमने रेस्ट करनी थी, और रेस्ट के बाद रात को मैंने देखा तो वो शख्स क्या कर रहा था, वो सो रहा है। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो शफाअत कर रहे हैं, शफाअत कर रहे हैं। फिर मैंने देखा क्योंकि मैं भी उस वक्त बलूगत की हालत के अंदर था, लेकिन मैंने उस शख्स से सीखा कि जिसका दिल खुदा के साथ लगा हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ खुदामंद में मगन है, वो रात को हर पहर में उसे उठाता है। आमीन। वो निगाहबानों को उठाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और वो हमें उठाए हुए है, और हमें उठानी है ये जिम्मेदारी, निगाहबान की जिम्मेदारी उठानी है। पहले मैं और आप निगाहबान बनकर निगाहबान ट्रेंड करें और फिर निगाहबान खड़े करें कलीसियाओं के अंदर, ताकि कलीसियाओं में रिवाइवल आए। वो कलीसियाएं कभी हमलावर नहीं होंगी, इब्लीस के जद में नहीं आएंगी जिनमें निगाहबान जागते हैं। उन कलीसियाओं में बेदारी आएगी जो कलीसियाओं में प्रेयर वॉरियर्स खड़े हैं। उन कलीसियाओं में बेदारी आएगी जिस कलीसिया के अंदर दुआ करने वाले लोग खड़े हैं। वो कलीसियाएं कभी डेड नहीं होंगी, वो कलीसियाएं पब्लिकली ग्रो करेंगी, विजनरी तौर पर वो बढ़ेंगी और उनकी विजन एक्सटेंशन होती चली जाएगी, वुसअत पाती चली जाएगी। सो लाजिम है कि मैं और आप ऐसे लोगों को खड़ा करें जो आयत नंबर 7 में है, वो आबद है और मैं और आप उसके महमूद हैं, और हमें और महमूदों को खड़ा करना है ताकि वो उसकी इबादत करें। और अगली बात बड़ी अहम है और वो आयत नंबर 10 में हमें मिलती है। सभी बोलो मिलकर आयत नंबर 10 का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। गुजर जाओ फाटकों में से गुजर जाओ, कहें गुजर जाओ फाटकों में से गुजर जाओ, गुजर जाओ फाटकों में से गुजर जाओ। आमीन। सो याद रखिए, इंटरसेसर हर जगह से गुजर जाते हैं। आमीन। और मुझे वो अपना बहुत अच्छी कहानी याद है, और ये ब्रदर एंड्रयू की,
वो एक मुल्क में था और एक मुल्क के अंदर जो है उसने बाइबल देनी थी, और मैं ये हिडन और सीक्रेट बात करना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ पर बाइबल में सिंपली उसने पहुँचानी थी, वहाँ पर बाइबल हर हाल में पहुँचानी थी। उसने ये अहद कर लिया था कि ये बाइबल इस मुल्क के अंदर मैंने पहुंचानी है, और उसके बॉर्डर पर वो खड़ा था, उसके फाटक पर वो खड़ा था, और पाक रूह ने उसे पहले ही तहरीक दी। उसने कहा कि तूने क्या करना है, तूने अपनी गाड़ी के अंदर दूध के कॉटन रखने हैं। और उसने दूध के कॉटन रखे, और वो कॉटन जो है वो जा रहे थे, और अचानक एक कॉटन फट गया। वहाँ पर चेकिंग हो रही थी, और चेकिंग होते हुए क्या लिखा है, और लिखा है वहाँ पर उसकी किताब के अंदर कि उनको जब खोला गया और उन्होंने देखा, एक दो डिब्बे हटाए, और फिर उसके बाद देखा कि ये दूध है, और दूध बहर उसने कहा ले जाओ। आमीन। सो याद रखिए, इंटरसेसर कहीं नहीं रुकेंगे। हालेलुया। वो गुजर जाएंगे, गुजर जाएंगे, गुजर जाएंगे, और खुदा आपके लिए ना सिर्फ शहरों के, खुदा मेरे और आपके लिए मुल्कों के दरवाजे खोलेगा, और मैं और आप एयरपोर्ट के थ्रू जहां कहीं वो हमें ले जाएगा गुजर जाएंगे, गुजर जाएंगे, गुजर जाएंगे। अगर खुदा आपसे वॉचमैन की खिदमत ले रहा है तो वो आपको ये हुक्म दे रहा है कि आपने रुकना नहीं है। क्या करना है? तीसरी बात उसने क्या कहा है, गो थ्रू द गेट, गुजर जाओ, गुजर जाओ, फाटकों में से गुजर जाओ। आमीन। मुझे और आपको फाटकों में से गुजारने वाला वो है, लेकिन निगाहबान ये इस काम करेंगे। आमीन। निगाहबान क्या करेंगे? और अगली बात बड़ी अहम है जो यहाँ पर की गई है, निगाहबान का जो हुक्म खुदा ने उससे दिया है, और उसका चौथा हुक्म है प्रिपेयर द वे ऑफ द पीपल, लोगों के लिए राह दुरुस्त करो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसको ये जिम्मेदारी दी गई थी? हाँ, यूहन्ना को। वो मसीह के आगे भी राह दुरुस्त करने वाले के तौर पर है, और ये एक वॉचमैन के तौर पर है। बेशक वो प्रॉफिट है, और ये कहा गया कि वो नबियों में से बड़ा है, वो बड़े प्रॉफिट के तौर पर जाना गया है। लेकिन याद रखिए, वो भी उसकी खिदमत क्या थी? उसकी खिदमत राह दुरुस्त करना, ना हमवार राहों को क्या करना, हमवार करना। और याद रखिए, ये वॉचमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हालेलुया। सो मैंने और हमारे दोस्तों ने कई मर्तबा रिंग रोड पर जाकर हमने पूरे शहर के गिर्द प्रेयर ड्राइव की है, मोटर बाइक पर प्रेयर ड्राइव की है शहरों के, इस शहर के अंदर। और उन दिनों के अंदर जब हसास अदारों को टारगेट बनाया जा रहा था, असेंबलीज हॉल और पंजाब असेंबलीज के सामने, और फिर जो है मिलिट्री और दाएं बाएं और जितने लोग थे अपना पुलिस के वहाँ पर, और तमाम हसास अदारों के गिर्द जाकर हमने क्या किए, हमने प्रेयर वॉक की। मैं ईमान रखता हूँ खुदा फिर प्रेयर वॉक के तौर पर आपके चर्चिस को खड़ा करेगा। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा एक बड़ा काम करने वाला है, और हम इस बड़े काम में शरीक होने वाले हैं। और क्योंकि खुदा वॉचमैन मुकर्रर कर रहा है, और ये वॉचमैन कैसे खड़े होंगे? प्रेयर करने के वसीला से। और ये खामोश नहीं रहेंगे, ये बोलते जाएंगे, खुदावंद की तारीफ करते जाएंगे, खुदावंद की तारीफ करते जाएंगे, खुदावंद की तारीफ करते जाएंगे। लेकिन याद रखिए, खुदावंद आपको बुला रहा है, ये ख़ास बुलावा है। इस बुलावा में आइए, खुदावंद आपको इस बुलावे में बुला रहा है। सारे पास्टर्स नहीं बनेंगे, सारे बिशप्स नहीं बनेंगे, सारे मुबशर नहीं बनेंगे। ये बड़ी खिदमत है, और इस बड़ी खिदमत के अंदर खुदा आपको बुला रहा है। खुदा का पाक रूह आज जोर दे रहा है कि आप वॉचमैन के तौर पर खड़े, वॉचमैन के तौर पर खड़े हो।
और एक और बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि क्या करने वाला है, आप आगे आगे जाएंगे, आप राहें दुरुस्त करेंगे। आमीन। सो मिलिट्री के अंदर खुदावंद आपको उनके हरावल दस्ते की तरह हमें भी हरावल दस्ता बना देगा। बेशक खुदा हमारे आगे आगे है, लेकिन फिर भी वो हमें लेता है और हमें आगे आगे चलाता है ताकि हम आगे आगे चलते चले जाएं। कलाम यहाँ पर कह रहा है क्या लोगों के लिए, क्या किसके लिए राह तैयार करना है? एक पासबान ने और वॉचमैन ने किन के लिए तैयार करना है? लोगों के लिए। सभी बोले लोगों के लिए राह दुरुस्त करो, लोगों के लिए राह दुरुस्त करो। यहाँ पर एजुकेशन का राह भी है, स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात भी है, डॉक्ट्राइनल एजुकेशन की बात भी है। हम उनके लिए राह तैयार करें और फिर उसके बाद उन जगहों पर जहां पर आप उनको भेजने वाले हैं वहां पर दुआएं और निगहबानी करके उनके लिए रास्ते तैयार करें ताकि रुकावटें ना आने पाए, उनको दुश्मन रोकने ना पाए। इसलिए उन लोगों के लिए राह दुरुस्त करें। अगली बात बहुत अहम है और वो है कास्ट अप द हाईवे। क्या करना है? यहां पर क्या लिखा है? शाहरा ऊंची और बुलंद करो। क्या लिखा है? शाहरा ऊंची और बुलंद करो। ये पांचवी बात है। क्या करो? शाहरा ऊंची और बुलंद। आमीन। ये देखिए ये कैसी शाहरा है। ये पांचवी बात जो कमांड है, ये बड़ा अहम कमांड है, ये हुक्म है। क्या करना है? हमने क्या करना है? शाहरा, हाईवे को क्या करना है? नीचे नहीं। सुनिए, हमारा हाईवे रनवे नीचे नहीं है, हमारा हाईवे और रनवे कहां पर है? ऊपर। हालेलुया। याद रखिए उन जगहों पर हमारी शाहरा हो, ऊंची शाहरा हो जहां पर क्या करें? हम अपने दुश्मन को दूर से देख लें। आपको पता है कि दीवारें जो बनाई गई थी, नहमिया ने जो दीवार बनाई थी वो कितनी बड़ी दीवार थी। जिन दीवारों की मरम्मत की गई थी, यरूशलेम के गिर्द जो दीवारें थी वो है बड़ी दीवारें थी। और जो दीवारें गिराई गई यरू की, वो भी कितनी बड़ी दीवारें थी, हैं? कितनी बड़ी दीवारें थी, कितनी चौड़ी दीवारें थी, हैं? इस तरह हमने क्या करना है? हमने जितने वॉचमैन हमारे साथ होंगे, हम खड़े होंगे, उतनी दीवारें, जितने वॉचमैन ज्यादा होंगे उतनी दीवारें बुलंद और ऊंची शाहराएं हाईवे की तरह बन जाएंगी। आमीन। सो किसी ना किसी के साथ खुदा कलाम करेगा, कहेगा कि यहां पर इस हल्के से, इस समझ से हमारा दुश्मन हम पर जो है वो हमला आवर हो रहा है। लाजिम है कि हमें बहुत सारे लोगों को चाहिए, हमें बहुत सारे वॉचमैन चाहिए और देखने वाले लोग। ऐसे लोग किताबें लिखते हैं, ऐसे लोग हिस्ट्री कायम करते हैं, वो लोग जिनको देखना आता है, वो लोग जिनके कान खुले हैं, जिन्हें सुनना आता है। सो वॉचमैन के अंदर ये दोनों ही खूबियां होनी चाहिए। पहली बात उसे सुनना है या देखना है, और दूसरी बात क्या है? उसे सुनना आए। सो कलाम यहां पर हमारी मदद कर रहा है। क्या करो? कास्ट अप, बुलंद करो, बुलंद करो। क्या? किसको? शाहरा ऊंची करो। सो हमें बुलंद और ऊंची करनी है। अगली बात, छठी बात है और वो बहुत अहम बात है और वो इसी टेक्स्ट में है। आगे क्या है? पत्थर चुनकर साफ कर दो। सही बोले, पत्थर चुनकर साफ कर। क्या करो जी? पत्थर, ये छठा हुक्म है। पत्थर चुनकर क्या करो? तो पत्थर चुनने का काम किसका है? पत्थर लगाने का काम भी, चुनने का काम क्या है? मैं इसको टू सेंसेस में लूंगा। पहली सेंस है चुनना, चुनने का मतलब है लगाना, है लगाना। तो लगाने का काम भी, पत्थर लगाने का काम किसे दिया गया है? वो वॉचमैन को दिया गया। और ये कौन से पत्थर है? पतरस का खत कहता है कि तुम जिंदा खुदा के पत्थर हो। हालेलुया।
खुदा के लोगों को हम खड़ा करें ताकि पत्थर लगते जाएं, पत्थर लगते जाएं, पत्थर लगते जाएं, पत्थर लगते जाएं। और खुदावंद कैसे ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो बी स्ट्रांग हों, जो पावरफुल हों, जो पावरफुल लोग हों, और खुदावंद ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है। आमीन। वो कैसे लोगों को खड़ा कर रहा है? ऐसे नहीं कि जिनके साथ जो है वो आकर टकराएं और वो पत्थर गिर जाएं। ये गिरने वाले पत्थर नहीं है। ये कैसे पत्थर है? ये स्ट्रॉन्ग पत्थर है। आमीन। जो निगहबान है या दुआया सूर में है, वो ये नहीं है कि वो एक रात दुआ करें और अगली रात वो क्या करें? रेस्ट करें। हाँ, अगर ऐसा मेरी जिंदगी में तजुर्बा आया है। हमने 400 बच्चों का एक प्रोग्राम किया और सारी रात दुआ करते रहे। सुबह जिन खादिमों ने आना था और उनमें से सिर्फ एक खादिम आया और बाकी कोई खादिम नहीं आया। खुदा ने उसे मुझे सारे के सारे उस सेमिनार के अंदर, बच्चों के सेमिनार में इस्तेमाल किया ताकि उस सेमिनार के अंदर बच्चों के जनरेशनली कर्स ब्रेक की जाए, तोड़ी जाए, और ताकि बच्चों को ब्रेक थ्रू मिले और बच्चे टीम मेरे साथ थी। लेकिन क्या हुआ, हमने सारी रात भी दुआ की, सेमिनार में भी, फिर उसके बाद जाकर सो गए। और याद रखिए, अगर आप को अभी तक ये नहीं पता कि जब भी आप एक बड़े काम करें, बड़ी खिदमत करें, तो उसके बाद जाते ही सोना नहीं है। जाते क्या करनी है? कम से कम 1-2 घंटे दुआ में गुजारें। तो वो कुव्वतें और तासीरें जो है, मैं जाते ही तकरीबन 4 बजे थे, 4 बजे मैं अंडर रेस्ट था, मैं जाकर सो गया। और जैसे सोया तो फिर एक हमला हुआ और मैं एकदम से खड़ा हो गया। याद रखिए, ये तो एक लीडर पर हमला था, हैं? वो जान गया कि मेरा दुश्मन ने मुझ पर हमला कर दिया, और उसको उसी टाइम में मैं खड़ा हो गया तो मैंने दूसरे लोगों के लिए शफाअत करना शुरू कर दी। और फिर उस रात 12 बजे तक मुझे अपने साथियों के लिए शफाअत करना पड़ी। सो याद रखिए, हमें क्या है, क्योंकि मैं ये जान गया था कि अगर मुझ पर पहला लीडर पर हमला हो गया है तो फिर दूसरे तो अभी सोए नहीं है, दूसरे अभी सोए नहीं है। तो मैं रात 12 बजे तक उनके लिए शफाअत करता रहा। और ये एक पावरफुल सेमिनार था और इसमें इलाका के बहुत सारे बच्चों ने, तकरीबन 400 और मुख्तलिफ कलीसियाओं के बच्चे भी आए जिन्होंने इस प्रेयर सेमिनार में हिस्सा लिया। और ये एक बड़ा पावरफुल प्रेयर सेमिनार था। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमने किनको तैयार करना है? हम बच्चों को तैयार करें, संडे स्कूल के बच्चों को दुआया, हाँ, संडे स्कूल की टीम को दुआ के लिए मुतहर्रिक करें। आपने बच्चों को, यूथ को दुआ के लिए मुतहर्रिक करें ताकि खुदा ये चाह रहा है कि ये पत्थर लगे। आमीन। कलीसिया में ये पत्थर क्या हो? ये लगना शुरू हो। जब ये पत्थर लगेंगे तो कलीसिया जो है और स्ट्रांग हो जाएगी। हालेलुया। और दूसरा, चुगने का मतलब, चुनने का मतलब हम एक और भी ले सकते हैं कि लोगों की राहों के अंदर जो पत्थर और रुकावटें आएंगी वो वॉचमैन हटा देंगे। हालेलुया। आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस में चेक पोस्ट पर बाज़ औक़ात क्या लगा दिए गए हैं? पत्थर, क्योंकि आगे जाना दुरुस्त नहीं है। तो फिर उनको क्या किया जाता है? तो हटाने के लिए भी किसको कहा जाता है? पुलिस को कहा जाता है। अगर दुश्मन ने लगाया है लोगों को लूटने के लिए पत्थर लगाए हुए हैं, तो फिर कौन जाती है? पुलिस जाती है, आर्मी जाती है, और ये फौज जाकर क्या करती है? उन रुकावटों को हटाती है। खुदा ने आपको वॉचमैन और खुदा ने आपको वॉरियर खड़ा किया है। आप रास्तों के पत्थर, लोगों के रास्तों के पत्थर हटाएंगे। आमीन। सो जल्दी से और आगे बढ़ना चाहते हैं, और आखिरी सेकंड 2 पॉइंट्स हैं, हम इस पर और बात करेंगे। इसी टेक्स्ट के मुताबिक लिखा है, उस लोगों के लिए झंडा खड़ा करो, लिफ्ट अप द स्टैंड फॉर द पीपल्स। लोगों को क्या करो? यहां पर झंडा खड़ा करने का क्या मतलब है? लोगों को खड़ा करना, गैदरिंग को खड़ा करना, हजूम को खड़ा करना है। आमीन। याद रखिए,
जिस कलीसिया में ज़्यादा दुआया सूर में होंगे, दुआया लोग होंगे, खुदावंद उस कलीसिया के अंदर क्या करेगा, उन लोगों को झंडा खड़ा करेगा, लोग जमा होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। मैं ईमान रखता हूं कि अगर आप प्रेयर वॉरियर और वॉचमैन अपनी कलीसियाओं में खड़ा करेंगे तो खुदा ये करेगा, खुदा लोगों को आपके चर्च में लाना शुरू करेगा। मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद WMTS के लोगों को एक ऐसे वक्त पर खड़ा कर रहा है जहां पर हमारे इलाकों को और हमारे मुल्क को दुआओं की अशद ज़रूरत है। कलीसिया पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है, नीड है कि हर कलीसिया में, ना सिर्फ WMTS की कलीसिया पाकिस्तान में वॉचमैन खड़े किए जाएं, वॉचमैन खड़े किए जाएं ताकि मुल्क की हिफाजत हो, शहर की हिफाजत हो, घरानों की हिफाजत हो। यहाँ पर जिंदगियाँ महफूज नहीं हैं, हमारे मुल्क में सितमगरी है, हमारे मुल्क में जुल्म है, लोगों को नंगा करके तरह तरह से मारा जाता है, अपने बदले लिए जाते हैं, हमारी पुलिस वक्त पर पहुंच नहीं सकती, हमारे लोग वक्त पर वहां पर उनको छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि एक बड़ी जो है खतरात हमारे मुल्क को है। तरह तरह से हमें लाजिम है कि हम अपने लिए, अपनी कलीसिया और अपने मुल्क के लिए वॉचमैन खड़े करें, वॉचमैन खड़े करें। और ऐसे वॉचमैन जिनके लिए खुदा ये कह रहा है, लोगों के लिए झंडा खड़ा करो, लोगों के लिए झंडा, लिफ्ट अप अ स्टैंड फॉर द पीपल्स। हम खड़े हों, हम खड़े हों, क्योंकि यीशु मसीह वो हमारा झंडा है, वो कौमों का झंडा है, वो हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि हम लोगों को जमा करें, लोगों को खड़ा करें। आमीन। आखिरी बात क्या कर वाइंड अप करना चाहता हूं और टाइम भी हो चुका है, और आखिरी बात बड़ी अहम है। सभी मेरे साथ मिलकर आखिरी आयत को पढ़ेंगे, और ये आयत 11वीं आयत है। 11वीं आयत में क्या लिखा है? देख खुदावंद ने इंतहाए जमीन तक ऐलान कर दिया है, दुख्तरे सयून से कहो कि देख तेरा नजात देने वाला आता है, देख उसका अजर उसके साथ और उसका काम उसके सामने है। आमीन। सो क्या है? दुख्तरे सयून से कहो। अब दुख्तरे सयून से नहीं कहने की जरूरत, क्योंकि मैं तो अपनी कलीसिया में खड़ा किया गया हूं। अब कलीसिया की बेटियों से कहो, कलीसिया के बेटों से कहो, कलीसियाई लीडर से कहो, कलीसियाई फैमिली से कहो कि तेरा नजात देने वाला आता है। अब कलीसिया के लोगों को यह कहने की जरूरत है कि वो आएगा। जो कुछ आप करेंगे, जो खिदमत आप करेंगे, आप चर्च में जिस तरह की खिदमत कर रहे हैं, आप सफाई की खिदमत कर रहे हैं, आप पास्टर की मदद के लिए आप उसका साथ दे रहे हैं, आप हदिये दे रहे हैं, आप दयकियां दे रहे हैं, आप तरह तरह से खिदमत के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप दुआ में सपोर्ट कर रहे हैं, आप वॉचमैन के तौर पर करें, आप पास्टर का पैगाम लोगों को देने वाले हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करने वाले हैं, चाहे आप जो भी खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं, और वो जो बादशाह आने वाला है, नजात देने वाला आने वाला है, वो क्या देगा जी? पहली बात है, देख उसका अजर उसके साथ है। आमीन। वो अजर देने के लिए आएगा। और अगली बात है, उसका काम उसके सामने है। आमीन। वो काम जो उसने दिया है, हम वो काम करें। आइए हम खुदावंद की हजूरी में सब आगे बढ़ेंगे, और मैं खुदाम से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे साथ आ जाएं ताकि हम दुआ में आगे बढ़ें। हालेलुया।